Dear students, as you all know, that spirituality is a deeply rooted ethics and culture of our great soil of India. And today we are having with us a distinguished spiritual escaping from his God and Sir's name is Jagannath Yadradar, that means Jagdish Lal Deshmukh. Sir is one of the proud alumnus of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Bhusawal. He had taken the admission in Bhusawal in the year 1993 and it's of Jalgaon district. You are very proud to feel that Sir is first rank holder in state standard examination of 1998 in JNV Bhusawal and second rank holder in 12th science stream in Nashik Division 4. Sir has completed BTech in Mechanical Engineering from VJTI College, Mumbai in the year 2004. He had completed 8 years lectureship in 3 engineering colleges, eminent and visited 3 engineering colleges in Mumbai and Pune. But when Sir finds that it is better to find the bliss in spirituality and in search of the spirituality for the last 12 years, Sir is full-time devoted in ISKCON Mumbai. ISKCON means International Society for Krishna Consciousness, for spreading the spiritual knowledge and guiding students of schools and colleges in life values and skills all over the country. Till now, Sir has visited 116 territories of 12 states, that means of 4 NVS regions, respectively belonging to the state of Chhattisgarh, Bihar, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Karnataka and Kerala, and even the territories of Indian states. Sir has also visited almost 1,000 plus schools and colleges for giving the lessons on life values and spiritual beliefs. So we are having with us today the presence of Sir, and I request all of you to put your hands together to welcome Sir. So I request Sir to take over the seat and address. हाँ थँक्यू त्याला काढून घ्या मला मोकळं पण आवडतं येस थँक्यू येस नाही हे चांगलं येस So I thank dear sir to welcome me and to give my small introduction to you. I'm so happy to be with you today evening here at Jawahar Navodaya Vidyalaya of Ahilyanagar. So I wish you all good evening. Sound is okay? Audible? Last voice? Can you listen properly? Okay, thank you. So many of you might remember that I had come to your school almost 2 years back.
2 साल पहले मैं आया था यहाँ पे। कुछ बच्चों को याद है? मैं असेंबली के बाद थोड़ा आपको बिठा के 10-15 मिनट बात किया था। वो समय ज़्यादा समय नहीं था, आपका कुछ टेस्ट था, इसीलिए सच बोले कि थोड़ा समय कम है, तो मैं उसमें बात किया था। आज थोड़ा समय ज़्यादा है, तो हम थोड़ा जीवन के विषय में जो अति आवश्यक ज्ञान है वो हम सुनेंगे। आपके बहाने मैं भी सुनूंगा। सुनने का मतलब क्या है कि बोलने वाला मैं निमित्त हूँ। अल्टीमेटली शक्ति देने वाले, बुद्धि देने वाले, विचार देने वाले, अच्छे विचार, अच्छी शक्ति, बुद्धि भगवान ही होते हैं। इसलिए हम नवोदय स्कूल में हमेशा भगवान को प्रार्थना करते हैं। जैसे आपने अभी मांगा भगवान से, हे चियामुची मांगने, है ना? आपने मांगा भगवान से कि हमें दीजिए भगवान। क्या दीजिए? कि मानसानी मानसाशी मानसा प्रमाणे वागाव। आज तो ऐसा होता नहीं है, आज वैसा होता नहीं है। इसलिए मैं हिंदी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे होंगे हिंदी भाषी जो मराठी समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग हैं हिंदी भाषी। आप लोग कहाँ से हैं? उन्नाव, यूपी। यस, उत्तर प्रदेश से हैं। सो थैंक यू टू बी हियर, for being here. So we welcome you here in महाराष्ट्र। So मैं लगभग देश के 12 राज्यों में जा चुका हूँ पिछले 2 सालों में, और एक अच्छा अनुभव आया है कि बच्चों को जीवन के विषय में कुछ ज्ञान देकर एक अच्छा आनंद आया है। क्योंकि हम जीवन में आनंद ही चाहते हैं, अल्टीमेटली अंत में हम समाधान ही चाहते हैं। हमें केवल अंक नहीं चाहिए केवल कागज़ पर, हमें केवल कागज़ का पैसा नहीं चाहिए केवल, हमें केवल दुनिया की वस्तु नहीं चाहिए। हमें इन सब के माध्यम से अंत में हमें अपने हृदय का आनंद और समाधान चाहिए। नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? यदि आपके पास दुनिया की सब वस्तुएं हैं लेकिन समाधान नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो कुछ फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमने बचपन से ये सोचा था कि क्या बनना है, क्या पाना है, ताकि जीवन धन्य हो जाए, सफल हो जाए। पता नहीं जीवन कितने दिन का है, कितने समय का है। इसलिए जो भी समय मिला है अनमोल है, मूल्यवान है। हमें इस समय का सदुपयोग लेकर जीवन को धन्य बनाना है, सफल बनाना है। ये विचार मुझे बचपन से आ गया था नवोदय में, क्योंकि मुझे जीवन की जो अनिश्चितता है, जीवन की जो अनिश्चितता है समझ में आ गई थी। बचपन में जो मैं कुछ किसी नज़दीक के लोग जो थे फैमिली में, अपने गली में, उनका मृत्यु देखा था। अब मृत्यु तो हम सभी ने देखा ही होगा। अब अपने गली में, अब अपने घर में, आजू बाजू में, या न्यूज़ में हम पढ़ते ही हैं, हादसा हो गया, भूकंप हो गया, कोई आपदा आ गई, आपत्ति हुई, और फिर ना बहुत लोगों की, हज़ारों लोगों की जान जाती कभी। तो हमने मृत्यु के विषय में देखा है, सुना है, लेकिन हम कभी कभी सोचते नहीं हैं कि ये जीवन का सत्य है और ये हमें एक दिन ना आएगा। जैसे आपकी एग्ज़ाम टेस्ट आती है, खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सब अच्छा खाते हैं, सोते हैं, लेकिन ये नहीं भूलते कि मुझे एक दिन टेस्ट भी देना है, एग्ज़ाम भी देना है। ये नहीं भूलते हैं, क्योंकि यदि भूल जाएंगे कि कोई टेस्ट देना भी है, कोई हमें एग्ज़ाम देना भी है, तो फिर हम फेल हो जाएंगे, हम पास नहीं होंगे। यदि फेल होते हैं तो फिर वापस एग्ज़ाम देना पड़ता है। ऐसा होता है, रिपीट करना पड़ता है एग्ज़ाम, पास होना पड़ता है, तभी आप अगली कक्षा में जाते हो। तो बच्चों, जीवन के विषय में मैं देखता हूँ कुछ बच्चे जो हैं पीछे जो बैठे हैं, ना यहाँ देखते हैं ना सुनते हैं, उनकी अपनी बातें चल रही हैं। ये अच्छा लक्षण नहीं है,
हमें वो सेंस होना चाहिए हम कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, सेंस होना चाहिए। और इसीलिए ये जो सेशंस होते हैं, लाइफ वैल्यूज़, लाइफ स्किल्स, लाइफ साइंस, इसकी आवश्यकता है। फिजिक्स के लिए 1 साल पढ़ते हैं हर क्लास में, केमिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं, जो मॉडर्न साइंस है उसके लिए पढ़ते हैं, मैथ्स के लिए पढ़ते हैं, लैंग्वेज के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जीवन के लिए नहीं पढ़ते हैं, जीवन के विषय में नहीं सोचते हैं। हमें अपने बुद्धि का विकास कैसे होना चाहिए वो नहीं सोचते हैं। मन का शांति कैसे हो, मन का जो एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, फोकस होता है, वो कैसे हो ये नहीं सोचते हैं। क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए, ठीक है, तो मुझे लगा कि कुछ बातें मैं पहले बोलता हूँ और फिर अपना जो सेशन है कुछ थोड़े समय का ही, ज़्यादा लंबा मैं नहीं लूँगा। आपकी क्षमता मुझे पता है कितना सुन सकते हैं और क्या आवश्यक है वही बात बोलने वाला हूँ। तो 2-5 मिनट का जो प्रेयर मैं हमेशा बोलता हूँ सब जगह, वो बोलेंगे हम सब साथ में मिलकर। क्यों? उससे मन के विचार शांत होते हैं, अनावश्यक विचार बाहर निकल जाते हैं और हम जहाँ हैं वहाँ फोकस आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे जो हैं सीधा बैठिए, सीधा बैठना है, सावधान, अलर्ट, और हाथ जोड़ना है, ठीक है। छाती के सामने हाथ जोड़िए, छाती के आगे, और आंखें बंद करना है। आंखें हमें धोखा देती है, जहाँ नहीं देखना चाहिए वहाँ देखते रहते बहुत समय, और आंखें भटकती है, फिर मन भी भटकता है आंखों के बहाने। तो आंखें बंद कीजिए, तो शांत हो जाइए, साइलेंस प्लीज। तो जो मैं बोलता हूँ उसको सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। आपको अच्छा अनुभव आएगा, प्रैक्टिकल अनुभव आएगा कि 2-5 मिनट भी यदि हम कुछ भगवान का नाम लेते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोलने से, मंत्र का जाप से, उच्चार करने से मन शांत होता है। तभी तो बोलते हैं मंत्र, क्या बोलते हैं? मंत्र, जो मन को शांत करता है, मन को शुद्ध बनाता है। आंखें बंद कीजिए, साइलेंस प्लीज, सीधा बैठिए, सीधा बैठना है, तभी तो बुद्धि जो है जगती है, नहीं तो सो जाते हैं, मंद हो जाते हैं। सावधान बैठिए सब लोग, मन को शांत कीजिए। मैं जो बोलता हूँ उसको सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। लंबा बोलिए, ओम। प्रेम से बोलना है, ठीक है, प्रेम से बोलना। ओम जो है भगवान का संबोधन है, संबोधन भगवान का ही एक रूप है। ओमकार, ओमकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथांच अनाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो। तो ओम जो है, ओमकार भगवान का ही रूप है, तो हमें प्रेम से बोलना है। बोलिए। ओमकार के जप में, ओमकार के उच्चारण में जो ये जो है,
ये लंबा होना चाहिए, ओम थोड़ा कम होता है और जो ओ कम होता है, ये ज़्यादा होता है, ठीक है। ओम सतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक आवाज में बोलना है, ठीक है, आवाज कम कीजिए और प्रेम से बोलना है, एक आवाज में एक साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। One last time. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare। तो आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं। और अभी शांत बैठना है। जो आपको एक नया अच्छा अनुभव आया है, अवश्य मन जो है शुद्ध होता है। जब एक साथ हम लोग प्रयास करते हैं तो सबकी शक्ति मिलकर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तभी तो नवोदय का भाग्य है, हम सबका सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। नवोदय तो पहले से महान ही, लेकिन हम भी सौभाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली है कि हमें ये अवसर मिला है कि हम सब एक साथ एक परिवार के जैसा सुबह जल्दी उठते हैं, मैदान पे सब इकट्ठा होते हैं, अपना जो मॉर्निंग जॉगिंग होता है, वार्म अप होता है, एक्सरसाइज होता है, एक साथ सब नहाते हैं साफ होते हैं, फिर नाश्ते के लिए जाते हैं। क्या पहले असेंबली होता है? पहले असेंबली होता है, नाश्ता बाद में होता है। ओके, तो एक साथ असेंबली में आते हैं, फिर एक साथ एक कैंपस में होते हैं। ये बड़ा सौभाग्य है।
और हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। और क्या सीखना है? अच्छा सीखना है। बहुत जगह मुझे बच्चे पूछते हैं, सर एक अच्छा मोटिवेशन दीजिए, अच्छा प्रोत्साहन दीजिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छा पाने के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए। तो हम बच्चों को बोलते हैं, हमने जो जीवन का समाधान पाया, जीवन को धन्य किया, नवोदय की वजह से किया है। क्यों? हमें जो मोटिवेशन मिला नवोदय से, गाइडलाइन मिला, वो हम आज भी ले रहे हैं। क्या मिला हमें मोटिवेशन, गाइडलाइन नवोदय से? शिक्षास्त्र आइए, कम टू लर्न, सीखने के लिए आइए। बहुत समय बच्चों को एग्ज़ाम्स का तनाव आता है, एग्ज़ाम्स का चिंता होती है, भय लगता है, कभी डर लगता है, या मन चिंता में होता है, तनाव में होता है, या मन नहीं लगता पढ़ाई में। ऐसी समस्या कभी बच्चों को होती है यहाँ पे कि सर फोकस नहीं होते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होती है, मन में बहुत विचार चलते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आती है, शांत नहीं होता है मन। ऐसा कभी होता है बच्चों के साथ? हाँ, होता है कभी? पढ़ाई में मन नहीं लगता सर, खेलने का मन करता है, ऐसा होता है ना? तो केवल एग्ज़ाम का सोचेंगे, एग्ज़ाम और फिर कितने मार्क्स आएंगे, कौन सा पोजीशन मिलेगा, ये सोचेंगे तो फिर मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, हमें आनंद नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा। लेकिन जब हम सोचेंगे हमें कुछ सीखना है, कुछ अच्छा समझना है, कुछ अच्छा ज्ञान लेना है, तो फिर मन को उसमें आनंद आता है, मन लगता है वहाँ पे। जैसे आपको वैकेशन होती है, 1 महीने का वैकेशन, अभी आप गए थे दिवाली में, दिवाली वैकेशन, हाँ, और फिर 2 महीना आएगा जो समर वैकेशन आएगा। वो समय भी हम यदि पढ़ने का हमेशा आदत लगा है या सीखने का इच्छा है, तो वैकेशन में भी हम कम से कम 2-3 घंटा रोज़ शांति से पढ़ सकते हैं। हमने किया था, अभी भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमें अभी जॉब नहीं है, अभी कुछ हमें फैमिली का जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए हम कुछ पढ़ते नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान लेने की बात तो आजीवन हमें करना चाहिए। कम टू लर्न, जैसे स्कूल में आए हैं तो बताया गया है सीखने के लिए आइए, शिक्षा लीजिए, अच्छा ज्ञान लीजिए। तो मैं तो समझता हूँ केवल स्कूल में क्यों, केवल जीवन में भी पालन कर सकते हैं। जीवन में आए हैं, जन्म लेकर मनुष्य बने हैं, अच्छा ज्ञान लेंगे, ये विचार होना चाहिए कि पता नहीं कितना समय है अपने पास, निकलना पड़ेगा यहाँ से, पता नहीं, तो हमें सावधान होना चाहिए, खेलना चाहिए, थोड़ा मज़ा मस्ती भी करना चाहिए। लेकिन जो अपना उद्देश्य है, जो अपना हेतु है, गोल, उद्देश्य, वो भी पाना चाहिए। नहीं पाना चाहिए? पाना चाहिए ना। जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, हाँ, फुटबॉल तो सबका फेमस होता है या सबका प्रिय होता है, फेवरेट। तो फुटबॉल में यदि गोल पोस्ट नहीं है, गोल पोस्ट नहीं है समझो, तो वहाँ पे आप 2 टीम बना के खेलेंगे। कोई ऐसा गेम देखने आएंगे जिसमें गोल पोस्ट ही नहीं है? 2 टीम आ गया है खेलने के लिए, बड़ा मैदान भी है, लेकिन वहाँ पे गोल पोस्ट नहीं बनाया है, नहीं है, तो ऐसे कोई मैच देखने आएगा? नहीं आएगा। क्यों? उसमें गोल पोस्ट नहीं है, गोल होगा ही नहीं, वो किक कहाँ लगाना है, कोई दिशा नहीं होगी, कोई मतलब नहीं है ऐसे गेम का जिसमें गोल पोस्ट ही नहीं है फुटबॉल में, मैच में। वैसे ही बच्चों जीवन का भी है, जिस जीवन में उद्देश्य नहीं है, गोल नहीं है, ऐसा जीवन फिर हमें दिशा नहीं दे पाएगा, सही दिशा हमें नहीं मिलेगी जीवन में। और जिसको सही दिशा नहीं है जीवन के लिए, अपने मन के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, उसका मन भटकेगा, उसकी बुद्धि भटकेगी, अशांत होगी। तो हमने समझा है, ध्यान दीजिए, पिछले बच्चे, पीछे जो बच्चे हैं शांत बैठिए, थोड़ा समय है, ध्यान दीजिए। तो जीवन का जो उद्देश्य है तो बड़ा महान है। केवल किताबों की पढ़ाई केवल वो नहीं है, केवल एक जॉब नहीं है जीवन का उद्देश्य, केवल पैसा कमाना नहीं है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं
जो पैसे कमाते ही नहीं हैं, बिना पैसे के ही जीते हैं, बहुत लोग हैं। पशु पंछी तो कहाँ एक पैसा कमाते हैं। पशु पंछी जो होते हैं लाखों की संख्या में हैं, कोटि की संख्या में हैं। पशु पंछी कहाँ वो जॉब के लिए जाते हैं? कभी जाते हैं? गधा कुत्ता कभी बैग लेके चला ऑफिस, ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा है। तो स्कूल में भी नहीं आते हैं। स्कूल में होते हैं लेकिन क्लासरूम में नहीं बैठते हैं। मेस का खाते हैं कुत्ते, कभी देखा है? बहुत कुत्ते होते हैं कैंपस में होते में तो उनकी व्यवस्था है, लेकिन उनके लिए अपनी किताबों की पढ़ाई, कंपनी का जॉब, कागज़ का पैसा आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चों, जीवन तो वो भी जीते हैं। तो केवल जीने से कोई मतलब नहीं है। पेड़ पौधे कुछ होते हैं, पेड़ बड़े बड़े पेड़, जैसे बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, हजारों साल जीते कभी होते हैं। केवल जीने से कोई बड़ी बात नहीं है। हमें जीवन का जो उद्देश्य है वो पाना है और उसके पहले समझना है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि हम जो भी चाहते हैं कमाना पाना, हमें इच्छा है वो अपने पास सदा के लिए हो। यदि आपके पास दो ऑप्शन हैं, जॉब है, एक जॉब है टेम्पररी, थोड़े समय का है, 1-2 साल का है, एक जॉब है परमानेंट, सदा के लिए। आप लोग कौन सा जॉब लेंगे? 1-2 साल का लेंगे टेम्पररी, या गवर्नमेंट का परमानेंट जॉब लेंगे? कौन सा जॉब लेंगे? हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कि परमानेंट लेंगे। आपके पास दो ऑप्शन हैं। 2-3 साल का जवानी है, यूथ है, युवावस्था, यौवन, या जिंदगी भर हमेशा का नित्य यौवन है, कौन सा लेंगे? ऑल टाइम यूथ, कौन सा लेंगे? 1-2 साल का जवानी या हमेशा की जवानी, कौन सा लेंगे? यदि ऑप्शन है तो लेंगे ना, लेंगे। वैसे ही वेल्थ, संपत्ति, वेल्थ, हेल्थ, फैमिली, ज्ञान, सुख, समाधान हम चाहेंगे। 1-2 दिन का, थोड़े समय का, और जीवन भी थोड़े समय का, बाद जीवन, बाद में पता नहीं क्या हुआ, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसा कुछ तो मिले जीवन कि जो नित्य हो, केवल नित्य नहीं, सुखी भी हो, केवल सुखी नहीं, युवा के यौवन के साथ हो, युवा अवस्था में हो। तो बच्चों, हम चाहते हैं कुछ तो ऐसा पाएं जो हो नित्य, और नित्य कुछ होगा नहीं तो सुख समाधान कहाँ से वो टिकने वाला है? नहीं टिकने वाला। इसलिए लोग जब अपनी इच्छाओं के हिसाब से पा लेते हैं, जॉब पा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, गाड़ी बंगला बना लेते हैं, बाद में उनको समझ में आता है कि हमें जो लगा था ये पाने के बाद तो हमें शांति हो जाएगी, समाधान हो जाएगा, सुख मिल जाएगा, वो तो कहीं मिला नहीं। क्योंकि जो कुछ पाया है हमने वो थोड़े समय की बात है, वो एक दिन छोड़ना पड़ेगा या हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये तब समझ में आता है जब अभी ज़िंदगी के थोड़ा समय बाकी है, बुढ़ापे के समय ध्यान में आता है किसी को। बच्चों, हमें समझ पहले बचपन में समझ में आ गया था कि जीवन का उद्देश्य केवल ऐसी भौतिक वस्तुएं पाना नहीं है। केवल वो तो लगती है जीवन की आवश्यकता है, जितना आवश्यकता है उतना कमाना चाहिए। हमने भी जॉब किया था 8 साल, जितना आवश्यकता उतना कमाया। हम शादी नहीं किए हैं क्योंकि मेरा स्वभाव जो है 2-4 लोगों में रहने का नहीं है। मेरा स्वभाव जो है सामाजिक जीवन का है, सोशल लाइफ का है, सबसे मिलना, सबके साथ रहना, सबके लिए सोचना, सबके लिए जीना, ये मेरा स्वभाव पहले से था, नवोदय से ही था। सबसे संबंध बनाना, सबके साथ अपना लगाव होना, ये था। तो शादी न करने का विचार ये तो हमने 8वीं से ही ले लिया था, 8 क्लास में ले लिया था कि हमें समाज के लिए या सामाजिक जीवन जीना है। तो ये बात नहीं है कि सबको ऐसा बनना है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है और वो सभी सोच भी नहीं सकते हैं। जिसका जो स्वभाव है वैसे जीना चाहिए। तो बच्चों, हम 3 विषय लेते हैं जीवन के विषय में। एक होता है जीवन का मूल्य, दूसरा विषय होता है जीवन का कौशल, लाइफ स्किल,
एक लाइफ वैल्यू, एक लाइफ स्किल और एक होता है लाइफ साइंस, जीवन का विज्ञान। तो मैं जो कुछ समय है 20-25 मिनट, मैं उसमें ये 3 विषय जो है ध्यान दीजिए, लाइफ वैल्यू, लाइफ वैल्यूज़, लाइफ स्किल्स एंड लाइफ साइंस मैं बोलने वाला हूँ। जिस ज्ञान के प्रचार के लिए हमने अपना जीवन दिया है पिछले लगभग 12 साल से, मैं समाज में, स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों के साथ ये विषय बोलता हूँ। मैंने 8 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पुणे और मुंबई में मैकेनिकल साइंस बच्चों को सिखाया, पढ़ाया जितना आवश्यक था, जॉब किया। लेकिन पिछले 12 साल से मैं लाइफ साइंस सिखा रहा हूँ। क्यों? लाइफ साइंस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल दैन दी अदर साइंस। साइंस तो हम सब कुछ बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं, इकोनॉमिक साइंस बोलते हैं, कभी कभी मैनेजमेंट साइंस ऐसा बोल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा साइंस क्या है? लाइफ साइंस। क्यों? लाइफ इज़ दी मोस्ट प्रीशियस, मोस्ट वैल्यूएबल। चाणक्य पंडित जो थे, उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। क्या वाक्य है? कि मनुष्य जीवन का एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक एक क्षण, एक एक पल, 1 मोमेंट, मनुष्य जीवन का एक एक क्षण इतना कीमती है, इतना मूल्यवान है, दुनिया की संपत्ति बदले में देकर हम उसको खरीद नहीं सकते। जैसे कोई व्यक्ति आईसीयू में होगा, तो आईसीयू में जब उसको समझ में आता है, डॉक्टर्स बोल देते हैं पता नहीं अभी कितना समय, 2-3 घंटा है बस अभी जीवन इनका, आज का दिन उनका अंतिम दिन है। ऐसी जब बात आ जाती है, पता नहीं 1-2 दिन की बात है अभी बस इनका जीवन, तब उस व्यक्ति को समझ में आता है कि मुझे तो बहुत इच्छा बाकी है, बहुत कुछ पाना नहीं हो पाया, नहीं पाया है। डॉक्टर साहब थोड़ा पैसा लीजिए और मुझे 2 दिन, 1 दिन, 1 महीना थोड़ा बढ़ा के जीवन दीजिए, समय बढ़ा के दीजिए। तो ये संभव नहीं हो पाता है। क्यों? मनुष्य जीवन कोई भी हो, पशु पंछी कोई भी, सबका जीवन, विशेषतः मनुष्य जीवन मूल्यवान क्यों है? क्योंकि समय जो है हम पैसे से, धन से, कोई अलग चीज़ से खरीद नहीं सकते। इसलिए हमें समझना चाहिए अभी जो समय मिला है वो हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोलने के लिए सब बोल देते हैं टाइम इज़ मनी। आपने कभी सुना है ऐसा बोलते हैं ना, टाइम इज़ मनी बोलते हैं? लेकिन आप अपने दिमाग से सोचिए, बुद्धि से सोचिए कि क्या सही में समय पैसा होता है? समय पैसा नहीं होता। टाइम इज़ अवर लाइफ, टाइम इज़ अवर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ फॉर सम टाइम, life is for some time, we don't know how much time, life is for some time, so time is not money, time is life, हमें समझना चाहिए। तो बच्चों, बहुत जगह लिखा होता है हाईवे पर, रास्ते पर, है ना, कोट्स होते हैं, मनाचा ब्रेक, उत्तम ब्रेक, कुछ लिखा होता है कभी, व्यर्थ जीवन व्यर्थ, लिखा होता है ना कि इफ़ यू वेस्ट टाइम देन यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। जीवन बर्बाद हो गया, समय बर्बाद किया तो जीवन बर्बाद होता है। तो बच्चों, हमें जीवन का मूल्य समझना चाहिए। इतना मूल्य क्यों है कि दुनिया की संपत्ति बदले में देकर खरीद नहीं सकते, इसलिए मूल्य है इतना मनुष्य जीवन का। यदि हम चाहे तो थोड़े समय में भी सबसे महान संपत्ति, सबसे महान चीज़ पा सकते हैं। वो क्या पा सकते हैं? हम नित्य शाश्वत जीवन पा सकते हैं यदि हम अपने समय का सही उपयोग किए। तो हम अपनी आत्मा का, मतलब हम अपना जो है, अपना शाश्वत सच्चित आनंद जीवन पा सकते हैं। एक शरीर का जीवन है, शरीर तो हम समझते हैं जन्म लिया है, बूढ़ा बनता है, बीमार होता है, फिर एक दिन मृत्यु होता है शरीर का। लेकिन हम जो जीव है आत्मा, तो ये जीव जो भगवान का अंश है,
ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है, इसे कहते हैं अजन्मा, भगवान जैसा। भगवान जैसे अजन्मा है, ये आत्मा भी भगवान जैसा क्या है, अजन्मा और अमर, अविनाशी है। शरीर जन्म लेता है, फिर वो बदलता रहता है समय के साथ और एक दिन नष्ट होता है। लेकिन जो हम चाहते हैं अपना जीवन नित्य हो, हम सदा के लिए जिए, वो संभव कैसे है? आत्मज्ञान लेने से संभव है। कैसे संभव है? आत्मज्ञान लेने से। पिछले बच्चों का, पीछे जो बच्चे हैं उनका ध्यान नहीं है, मैं चाहूँगा थोड़ा ध्यान दीजिए। सीधा बैठिए सब लोग, साइलेंस प्लीज, साइलेंस। लड़कियां जो होती हैं, मैं सब जगह देखा हूँ, नवोदय में, सभी स्कूल में देखा हूँ, लड़कियां ज़्यादा ध्यान देती है, शांति से बैठती है, क्योंकि बुद्धिमान है, वो जानती है कि लाभ लेना है, हमें नुकसान नहीं पाना है। तो लड़कों को थोड़ा सीखना चाहिए दीदियों से। दीदियाँ कितनी है ना ध्यान देती हैं, कितना ध्यान से पढ़ती हैं, सुनती है, जो टीचर बताते हैं उसको पालन करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। सब जगह हमने देखा है। लड़के थोड़े मस्ती में होते हैं और इसलिए फिर बर्बाद, अपना जो समय बर्बाद करते हैं। मैं चाहूँगा कि लड़के भी जो है इनसे सीखें। हम सीखते हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है कि ध्यान कैसे लगाना है, ध्यान से कैसे सुनना है, पढ़ना है, समझना है, अच्छा बनना है। इसलिए आज तो देखिए ना, अपने देश की राष्ट्रपति कौन बने हैं? यस, ये उसके प्रमाण हैं, प्रमाण कि उनकी प्रगति ज़्यादा हो रही है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपको भी पीछे नहीं रहना है, आपको भी आगे आना है। ओके, ध्यान दीजिए। लाइफ वैल्यूज़ बोल रहा था मैं। लाइफ वैल्यूज़ में हम आपको बताएंगे, कुछ पॉइंट्स बताएंगे। एक तो पहले बोल दिया, लाइफ वैल्यू। लाइफ का वैल्यू जो है अपनी बॉडी की वजह से नहीं है, अपने लाइफ का वैल्यू आत्मा की वजह से है। जिस बॉडी में आत्मा नहीं है, यस प्लीज़, अपना सेंस खोना नहीं है, नॉनसेंस नहीं बनना है, अपने सेंस को नहीं खोना है, अपने सेंस को दिखाना है, सेंसिटिव बनना है, सेंसिटिव। क्योंकि आपकी पहचान आपके अंकों से नहीं होगी, आपके जो कागज़ होंगे, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, उससे नहीं होगी। आप कितना पैसा कमाते हैं, उससे आपकी पहचान नहीं होगी। समाज में आपकी पहचान आपका व्यवहार कैसा है, आपका जो डीलिंग है, बिहेवियर, व्यवहार, बर्ताव कैसा है, उससे होती है। जैसे मैं अभी सबको देख रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ जाएगा कौन बच्चा कैसा है, किसकी मानसिकता क्या है, किसका संस्कार कैसे हैं, वो तो हम समझ पाते हैं। तो हमें ये सावधान होना चाहिए कि लोग हमें देखते ही समझ जाते हैं अपने माता पिता कैसे होंगे, अपने फैमिली का संस्कार कैसे होगा, अपनी बुद्धि कितनी है। ये हमें सावधान होना चाहिए। लोग समझ जाएंगे कैसे? अपने व्यवहार से, बर्ताव से। हमें सावधान होना चाहिए। अपनी वैल्यू लोग कम कर देंगे, आपको कीमत नहीं देंगे लोग। क्यों? आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपको सेंस नहीं है, कहाँ कैसे बैठना है, कहाँ कैसे सुनना है, कहाँ कैसे ध्यान देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जब 8 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब किए, तब हमने बहुत नज़दीक से देखा। क्या देखा? जो कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में, वो लोग अपनी प्लेसमेंट के लिए अबाउट 60 जो है, अबाउट 60 फर्स्ट क्लास के ऊपर 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80, 90 सभी को एक लेवल मानती है, एक लेवल। ये नहीं होता उनके लिए कि भाई 90 वाले को हमको जॉब देंगे, 60-70 को जॉब नहीं देंगे, ऐसा नहीं सोचते हैं। वो लोग 60 प्लस जो भी है, 95 वाला हो या 99 वाला हो, सबको एक लेवल मानते हैं कि वो 60 के लेवल का ही है। तो उसके बाद
उनकी टेस्ट होती है, उनका जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, उनका इंटरव्यू होता है। तो क्या देखते हो लोग? आपका माइंड सेट क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड, आपका भाव क्या है, एटीट्यूड, आपका व्यवहार कैसा है, वो देखते हैं। आपकी सोच क्या है, आपका जो आदत है वो क्या है। तो जॉब केवल अंकों से नहीं मिलता है बच्चों। जॉब जो है ज़्यादातर अपना जीवन का जो पद्धति है, लाइफस्टाइल, माइंडसेट, अपना आत्मविश्वास, अपना व्यवहार, उससे मिलेगा। कभी मिल भी जाए अंकों से, वो टिकेगा नहीं यदि हम गलत व्यवहार किए तो। ओके, तो मैं चाहूँगा, थोड़ा समय है 10-15 मिनट, तो थोड़ा सुनिए कि कौन सी वैल्यूज़ हमें इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली वैल्यू इम्पॉर्टेंट है नॉलेज। नॉलेज इज़ अ वैल्यू, बिकॉज विदाउट नॉलेज लाइफ विल हैव नो वैल्यू। विदाउट नॉलेज लाइफ विल हैव नो वैल्यू। Which knowledge? Highest knowledge. What is that? The highest knowledge is self knowledge. क्या बोलते हैं? सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। फिजिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मॉडर्न साइंस, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हमें आत्मज्ञान भी लेना है। तभी तो सब नवोदय के लोगों में सब जगह 2 शब्द हम पढ़ते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा है? प्रज्ञानम ब्रह्म। किसी को इसका मतलब पता है? इसका मतलब क्या होता है? लड़कों में किसी को पता है कि जो लोगों में सब जगह अपनी टी शर्ट में, अपने सब जगह टाई पे, बेल्ट में, सब जगह लिखा होता है ना, किताबों पे प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका मतलब क्या है? लड़कियों में से कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? किसी को पता है? तो ये दुर्भाग्य है कि हमें सब जगह दिखता तो है प्रज्ञानम ब्रह्म, लेकिन कभी हम सोचते नहीं हैं ये लिखा तो है, इतना बड़ा अपना नवोदय का मेन लोगो है, इसमें जो 2 शब्द है बड़ा सोच समझ के लिखा होगा या वो बनाया होगा। ये शब्द कहाँ से लिया है, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, इसका मतलब है कि जो ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे प्रख्यात प्रज्ञानम, प्रख्यात और प्रसिद्ध ज्ञान, वो है ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म बोलते हैं जीव को, आत्मा को बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं परब्रह्म। आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, वैसे ब्रह्म हम हैं जीव सभी, और भगवान को बोलते हैं परब्रह्म। अन्न है पूर्ण ब्रह्म या परब्रह्म बोलते हैं। तो ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा, जीव। देखो, ये दुर्भाग्य है अपना, हम साइंस तो पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, साइलेंस प्लीज। बायोलॉजी में केवल बॉडी का स्टडी है। हम जो मॉडर्न बायोलॉजी पढ़ते हैं वो MBBS में भी हो या MD में भी हो, MS में हो, मास्टर्स में, उसमें केवल बॉडी का स्टडी है, बॉडी पार्ट्स का स्टडी है, वो प्लांट बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी हो। लेकिन वो बायोलॉजी में कहीं पे भी, मेडिकल साइंस में ना मन के विषय में कोई ज्ञान है, बुद्धि के विषय में ज्ञान नहीं है। और जो आत्मा है, जीव, जो जीवन का आधार है, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, जिसमें जीव है उसको बोलते हैं सजीव, और जिसमें जीव नहीं उसको बोलते हैं निर्जीव, डेड मैटर। हम कौन हैं? लिविंग, सजीव। ये क्या है? नॉन लिविंग, निर्जीव। व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें आत्मा नहीं है, इसमें जीव नहीं है, तो क्या बोलते हैं? निर्जीव, निर्जीव, जीव नहीं इसमें। इस बॉडी में भी जीव है तो क्या बोलते हैं? सजीव। यदि जीव निकल जाए बॉडी से तो क्या बोलेंगे? ये भी क्या हो गया? अभी निर्जीव हो गया, डेड बॉडी हो गया।
कोई अपने घर में डेड बॉडी सजा के रखता है? नहीं रखते। क्यों? कोई वैल्यू नहीं है, उपयोग नहीं है। तो बच्चों इतना समझिए कि लाइफ वैल्यूज़ में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? नॉलेज। तो कौन सा ज्ञान सबसे महान है? आत्मज्ञान। बहुत जगह हम सुनते हैं जीवन में कुछ बड़ा बनने के लिए आत्मविश्वास चाहिए। क्या बोलते हैं? जीवन में आत्मविश्वास चाहिए। वो कहाँ से आएगा? फिजिक्स केमिस्ट्री से तो नहीं आएगा, क्योंकि वो भौतिक ज्ञान है। जीवन में आत्मविश्वास आएगा आत्मज्ञान से आएगा। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान है, स्वयं का ज्ञान है, उस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है। बच्चों मुझे नवोदय में धोती पहनकर, मतलब साधु के वेश में आना, जो अपने बैच का टॉपर था क्लासेस में, जो बीटेक किया था, जिसने आईएएस बनने का सपना देखा था, उस व्यक्ति के लिए नवोदय स्कूल में जाकर साधु के वेश में समय बिताना इतना आसान चीज़ नहीं है। इसको हिम्मत चाहिए। क्यों? मन में तो आएगा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो दिमाग इनका ज़्यादा पढ़ने से क्या हो गया दिमाग थोड़ा सा बिगड़ गया इनका, ज़्यादा पढ़ाई किया इसलिए ऐसा कुछ हुआ होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन बच्चों जब मुझे आत्मज्ञान है तो लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आत्मविश्वास है कि हमने जो किया है वो सही किया है। हमें कोई किसी का सोचने की आवश्यकता नहीं है। आज जैसे होता है, हमें कभी मंच पे आकर कोई बोलने के लिए आत्मविश्वास नहीं होता है। हमें कुछ अपना वेशभूषा जो हम चाहते हैं और जो अपनी परंपरा है, अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो ऐसा हमें भय होता है या हमें डर लगता है। क्यों? आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं है। बच्चों हमें समझना है, बॉडी अपनी गाड़ी है, ये बॉडी जो है अपनी फिजिकल बॉडी अपनी गाड़ी के समान है। हम जो है इस गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर है, सवारी है, हम यात्री है। जीवन के सफ़र में हम एक सवारी हैं। तो हमें गाड़ी को संभालना है, क्योंकि अपनी गाड़ी का उपयोग लेना है जीवन में, और जहाँ से हम आए हैं वहाँ जाना है। आप लोग स्कूल में पहले से आए हैं या पहले से हैं या आए हैं? आपको याद है कंफर्म कि आप आए हैं या पहले से हैं? आए हैं। आपको याद है कहाँ से आए या भूल गए? याद इसे कैसे भूलेंगे माता पिता को, अपने गांव को? सही बात है। और आप यहाँ पर हमेशा रहना चाहोगे या यहाँ से जाना चाहोगे? जाना चाहोगे? तो कहाँ जाना चाहोगे? जहाँ से आए हैं। क्योंकि आपके माता पिता भी जो है वो चाहेंगे कि बच्चे अच्छे बनकर अपने गांव वापस आए। जैसे कभी वो गाना बोलते ना कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। कभी सुना है ये गाना कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए? कभी अपना हम गाँव देश छोड़कर परदेसी बन गए हैं, नवोदय में आए हैं, यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, तो अपने गांव की तो याद आती है। तो माता पिता तो चाहते हैं कि बच्चे जल्दी आए। तो बच्चों एग्जाम्पल में जो दिया स्कूल का, इसलिए दिया, जीवन का भी ऐसा ही है। हम जीवन में दुनिया में पहले से नहीं हैं, हम दुनिया में आए हैं जन्म लेकर। आपने जन्म लिया है या नहीं लिया है? हाँ सर, हैप्पी बर्थडे होता है, आपका होता है स्कूल में? हैप्पी बर्थडे होता है ना। मतलब क्या है? हमने जन्म लिया है, शरीर पहले से नहीं है, हम जन्म लेके आए हैं। लेकिन बच्चों हमें याद नहीं हम कहाँ से आए हैं, इसलिए हमें जाने का कोई विचार नहीं है। आप देखिए दुनिया में लोग आए तो हैं लेकिन यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। सोचते हैं दुनिया में क्या हो जाऊँ, सेटल हो जाऊँ, जो कभी संभव नहीं है। क्योंकि बच्चों हमें जो चिंता आती है जीवन में, हमें जो दुख आता है, इसलिए आता है क्योंकि हम सोचते हैं
दुनिया में, इस बॉडी में हमेशा रहें, जो संभव नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो जानता है, जैसे हम स्कूल में हमेशा नहीं हो सकते, वैसे हम बॉडी में, दुनिया में हमेशा नहीं हो सकते हैं। अपनी कोई इच्छा है, अपना कोई हेतु है स्कूल में आने का, ज्ञान लेने का, कुछ बनने का, वो होने के बाद हम अपने गांव जाएंगे। वैसे ही बच्चों, अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ, लास्ट 5 मिनट्स आई विल स्पीक। ध्यान दीजिए, आपको सुनना है या नहीं सुनना है? सुनना ही नहीं। मुझे कोई बोलने का ऐसा कोई ये नहीं है कि मुझे बोलना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने जीवन का सुख पाया है, हमने जीवन का समाधान पाया है, हम अपनी मृत्यु के लिए भी तैयार हैं। हमने पढ़ाई कर लिया है जीवन के लिए, क्योंकि मृत्यु जो है एंड नहीं है। जो मैं एग्जांपल दिया पहले, मृत्यु केवल टेस्ट है, टेस्ट एग्ज़ाम है। जिसने पढ़ाई किया उसके लिए, उसको कोई एग्ज़ाम का टेंशन या कोई भय नहीं होगा। हमें कोई मृत्यु का भय नहीं है, ना कोई चिंता है, ना कोई उसके लिए हमें भय, कोई तनाव है, क्योंकि हम निश्चिंत है। क्यों? हमने पढ़ाई कर लिया है, उसके लिए हम तैयार है कि मृत्यु भी आए तो हमें पता है पास कैसे होना है। तो भी बोलते ना, पास अवे, है ना, कि माय फादर, माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडमदर पास्ट अवे बोलते हैं, पास्ट अवे। मतलब क्या है? वो पास होना चाहिए ना, आपको फेल नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए व्यक्ति। और डेट एग्ज़ाम है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 5 मिनट बोलता हूँ। जब हमें आत्मज्ञान होगा, जो जीवन का मूल्य है, बड़ा आत्मविश्वास होगा, जिसमें आत्मविश्वास है उस व्यक्ति में आत्मसंयम होता है। आत्मसंयम, संयम बड़ी शक्ति है। संयम, जो सही चीज़ है वो करेंगे, गलत चीज़ को हम नहीं करेंगे। संयम की आवश्यकता है। आज अभी अपना मन जो है बहुत समय धोखा खा जाता है, गलत चीज़ को पकड़ लेते हैं, अच्छी चीज़ को छोड़ देते हैं। संयम नहीं है। जो नहीं देखना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, वो करते हैं, क्योंकि संयम नहीं है। तो बच्चों हमने पाया है, आत्मज्ञान से आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास से हमें आत्मसंयम आता है, और फिर जिस व्यक्ति के जीवन में संयम है वो व्यक्ति शांति पाता है, मन की शांति, अपने जीवन की शांति पाता है। कि संयम है, उसका मन गलत जगह पे भटकेगा नहीं और गलत दिशा में जाएगा नहीं, निगेटिव कभी सोचेगा नहीं। ओके, और जिसने शांति पाई है जीवन की, उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। जिसका मन शांत नहीं है वो कहाँ सुखी होगा? नहीं हो सकता। तो ये बच्चों लाइफ वैल्यूज़ है। नॉलेज, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, क्या बोलते हैं, आत्मसंयम, आत्मविश्वास, आत्म शांति, बड़ा इम्पोर्टेंट है। आत्म शांति वैल्यूबल है, वैल्यू है। आत्मा सुख, सुख की आवश्यकता है हमें। जिस व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है वो समाधानी कैसे होगा? नहीं होगा। ओके, तो मैं जीवन की वैल्यूज़ के विषय में इतना बोल दिया कि लाइफ वैल्यूज़ आर वेरी वैल्यूएबल। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? वैल्यू, नॉलेज, कॉन्फिडेंस। बहुत है, बोलने के लिए 1000 वैल्यू बोल सकते हैं कि स्वच्छता भी एक मूल्य है। स्वच्छता, प्रामाणिकता, ऑनेस्टी बोलते हैं, ऑनेस्टी भी आवश्यकता है। लेकिन जो मुख्य है मैं बोल दिया हूँ कि आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्मशांति, आत्मसुख। और जिसने आत्मसुख पाया है उसको आत्म समाधान मिलता है। ओके, लाइफ स्किल, 2 मिनट बोलता हूँ लाइफ स्किल के विषय। ध्यान दीजिए, लाइफ स्किल्स, वो भी बहुत स्किल बोल सकते हैं। लिसनिंग स्किल, ध्यान सुनने की कला। यहाँ लिखा है कला आविष्कार रंगमंच। तो कला है सुनना,
शांति से बैठना, ध्यान देना कला है, सबको नहीं आता है, क्योंकि आदत लगाया नहीं कभी। ध्यान दीजिए, तो लाइफ स्किल्स, सुनने की कला, पढ़ने की कला, याद रखने की कला, फोकस होने की कला, अच्छा खेलने की कला, ये सब कला है, स्किल्स है। सिंगिंग स्किल्स, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी स्किल है, सब स्किल है। लेकिन सबसे बड़ा स्किल जो भगवान ने बताया है भगवद गीता में, सुनना चाहोगे क्या है? पीछे बोलिए। योगः कर्मसु कौशलम। जैसे अपने नवोदय के लोगों में 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये लिए गए हैं उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद, वेद उपनिषद बोलते हैं ना, वहाँ से लिया है। तो आईआईटी के लोगों में आप कभी देखोगे, आईआईटी के लोगों में 3 शब्द है, वो लिए है भगवद गीता से। वो शब्द में जो बताया अभी, योग मतलब योगः कर्मसु कौशलम, कि सबसे बड़ा कौशल क्या है अपने जीवन में, अपने कर्मों में, अपने कार्य में? योग का मतलब क्या है? जोड़ना। क्या जोड़ना? पहले संबंध जोड़ना। किसके साथ? हम जिसके हैं, हम किसके हैं? हम जो जीव हैं, आत्मा भगवान के हैं। माता पिता ने हमें शरीर दिया है, जन्म दिया है, लेकिन जो आत्मा है वो अजन्म है, वो भगवान का अंश है। तभी तो हम बोलते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कभी सुना है आपने? तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। किसके लिए बोल रहे हैं? कोई पीएम सीएम, कोई इंजीनियर डॉक्टर को बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? भगवान को बोल रहे हैं। त्वमेव माता से पिता, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव, भगवान के लिए बोलते हैं। तो यदि हम समझ जाएं, भगवान अपने माता पिता है, मतलब आत्मा के, परम पिता आत्मा के, सभी जीवों के, तभी तो हम भाई बहन बनते हैं। बिना माता पिता समान हुए, कॉमन माता पिता नहीं होंगे, तो हम भाई बहन कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे। जो बोलते हैं रंग जाति पद भेद रहित, हम सब का एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। कभी सुना है आपने? पता नहीं कहाँ से बोल रहे सर, कहाँ हैं? जेनी प्रेयर, यस। रंग जाति पद भेद रहित, हम सबका एक भगवान हो। अभी विश्वास बोलते हैं, वो पहले भगवान ही लिखा है उसमें। अभी वो लोगों को भगवान का ज्ञान नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो सोचते हैं भगवान बोलने से क्या फ़ायदा होगा, लेकिन वो भगवान ही पहले। आगे क्या लिखा है? संताने धरती माँ की। तो हम भूमि को, धरती को क्या बोलते हैं? माता बोलते हैं, कि हम संतान हैं किसकी? भारत माता की जय बोलते हैं। तो बच्चों, अंतिम बात ध्यान दीजिए, मुझे समय का ध्यान है, तो मैं अवश्य ये अंतिम बातें बोलने वाला हूँ। ध्यान दीजिए। तो यदि हमें संबंध समझ में आएगा, संबंध, हम किसके हैं सदा के लिए? दुनिया के हैं थोड़े समय के लिए, माता पिता के, फैमिली के, गांव के, स्कूल के, थोड़े समय के लिए, पता भी नहीं कितना समय के लिए, लेकिन हम हमेशा के लिए भगवान के हैं। तभी तो बोलते हैं कि भगवान ने गीता में कहा है, मेरे पीछे बोलिए श्लोक गीता का, जो गीता के 15वें अध्याय का 7वां बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। बोलिए, ममैवांशो जीवलोके, ममैव अंश जीवलोके, जीवभूत सनातनः,
जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसका मतलब है भगवान कहते हैं कि दुनिया के सारे जीव, सभी जीव उनके नित्य सनातन अंश है। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः। अभी अपनी स्थिति क्या है? जब हमने भगवान को छोड़ दिया है, भगवान का धाम छोड़कर दुनिया में आए हैं, कुछ इच्छा की वजह से हमें जन्म लेना पड़ा है। जो आत्मा जन्म है उसे हड्डी मांस की बॉडी मिली है जो हमें दुख देती है, जो हमें यातना देती है शरीर हमेशा। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, अपना मन हमें दुश्मन जैसा दुख देता है, चिंता देता है, समस्या देता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, जब इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हमें भटकाती है क्योंकि हमने गलती की है। क्या गलती की है? भगवान को हमने भुला दिया है। तो बच्चों, अंतिम बात ये बोलना है, योगः कर्मसु कौशलम। सबसे बड़ा जीवन का कौशल वो है जो सबसे महान भगवान हैं उनसे अपना संबंध जोड़ना, क्योंकि वो संबंध है केवल हम भूल गए हैं। ओके, तभी हम भगवान से शक्ति, बुद्धि, ज्ञान ले पाएंगे। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर हम चले नेक रास्ते पे हमसे। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास समझो। थैंक यू। तो हमने मोरे में सीखा था प्रेयर, और हमने उसको भुलाया नहीं। क्यों? कि पालन करने के लिए है, भगवान से शक्ति, बुद्धि, ज्ञान लेने के लिए है, हमेशा के लिए। तो बच्चों, यदि हम ये जानेंगे और शक्ति हम कैसे ले पाएंगे? जब संबंध जोड़ेंगे। क्या संबंध भगवान के साथ? हम जो बोलते हैं सबका मालिक, क्या बोलते हैं? सबका मालिक तो भगवान है, जो सबके माता पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साथी सहारा सब कुछ है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यदि मालिक, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। हम नेकी पर चले और बधी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। कोई सुना है आपने? यस, जीवन का ये लक्ष्य है कि हम जब जाएं दुनिया से अपने गांव,
अपने गांव मतलब भगवान का गांव, जहां से हम आए हैं, जो भगवान ने बताया। शांति प्लीज, शांति। ओम शांति शांति शांति। ये केवल बोलने के लिए नहीं है, शांत होने के लिए है। ओके, तो योगः कर्मसु कौशलम, जिस व्यक्ति ने अपना संबंध भगवान से जोड़ लिया है उसमें शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, आत्मविश्वास बहुत होता है। अंतिम बात लाइफ साइंस, लाइफ वैल्यूज हो गया, लाइफ स्किल हो गया। अभी लास्ट पॉइंट लाइफ साइंस। बच्चों, लाइफ साइंस का मतलब है, ये बोल रही हूँ तो 2 मिनट मेस कब चालू होती है? 45। ओके, बस 2 मिनट। तो लाइफ साइंस अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ, सर ने बोल दिया मुझे तो मैं समझ गया। मेस का टाइम 7:45 है। ओके ठीक है, तो मैं 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ, अभी टाइम है 5 मिनट, ध्यान दीजिए। तो लाइफ साइंस का मतलब है साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ। तो मैं जो आपको एग्जांपल दिया गाड़ी का, बॉडी अपनी गाड़ी है, हम जो जीव है, आत्मा वो भगवान का अंश है। जो अपनी इंद्रियां हैं, सेंसेस, वो अपने चक्के हैं जिसमें गाड़ी दौड़ती है, हाथ पांव सेंसेस। गाड़ी का ब्रेक, जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है तो अपने बॉडी में ब्रेक है, तो मन है, मनाचा ब्रेक, मनाचा ब्रेक, उत्तम ब्रेक। माइंड इज द ब्रेक, माइंड इज द ब्रेक। ध्यान दीजिए, तो हमें इसकी आवश्यकता है साइंस, लाइफ साइंस की, कि हमें अपने मन का संयम नहीं है, हमें ध्यान देने का आदत नहीं है। बॉडी इज अ व्हीकल, सेंसेस आर दी लाइक अ व्हील, माइंड इज अ ब्रेक। ब्रेक कहाँ लगता है? व्हील्स के ऊपर, है ना, चक्कों के ऊपर। तो मन का ब्रेक कहाँ लगेगा? अपने सेंसेस के ऊपर, आँखों के ऊपर, कहाँ क्या देखना है क्या नहीं देखना है। जीवा के ऊपर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, कहाँ हाथ लगाना है कहाँ हाथ नहीं लगाना है, ये सब कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सेंस कंट्रोल कहाँ से होगा? माइंड से होगा, मन। गाड़ी का ब्रेक अपने आप नहीं लगता है। गाड़ी का ब्रेक कौन लगाता है? ड्राइवर। गाड़ी का ब्रेक कौन लगाता है? ड्राइवर। तो अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर बुद्धि है, बुद्धि। जिसकी बुद्धि सो गई उसकी गाड़ी खड्डे में जाती है, गड्ढे में जाती है। जो ड्राइवर सो गया तो गाड़ी एक्सीडेंट होती है। तो जिसकी बुद्धि मंद है, जिसकी बुद्धि सो गई है, वो व्यक्ति जीवन की गाड़ी सही दिशा में नहीं ले लेता है। और हम जो है इस गाड़ी में बैठे हुए कौन है? मालिक। गाड़ी के मालिक है, जिसका काम है अपनी बुद्धि को आदेश देना, सूचना देना, हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बच्चों बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल। कोई उठना नहीं है तो मैं आपके कैंपस में कल सुबह तक हूँ, लगभग 10 बजे तक मैं आपके कैंपस में हूँ। किसी को कुछ मुझसे पूछना है, मिलना है तो मैं मुझसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू। आप बोलिए सर। हम भौतिक चीजों के साथ जुड़े हुए रहते हैं और इस भौतिकता में एक दिन हमें एहसास होता है कि जो चीज हमें मिलनी थी, जिसकी हम खोज कर रहे थे, जिसके लिए हम जीना चाहते थे, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। स्वामी जी ने आज आपको बहुत ही बड़ी मूल्यवान बातें बताई है। हम कोशिश करते हैं कि जीवन में एक सच्चा इंसान हम बने, इस समाज की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो,
और एक मनुष्य का निर्माण हो, इससे हम कार्य करें। तो मैं स्वामी जी को स्कूल परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इसी के साथ ये कार्यक्रम खत्म हुआ। जय हिंद।